पे, जिस पे हम मेनली बात करना चाहते हैं मार्केट्स के ऊपर, सेक्टर्स के ऊपर, FIIs DIs के ऊपर, कुछ ऐसी बातों के ऊपर जो डायरेक्टली मार्केट से लिंक्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन सुशांत सर, जो हमने कंप्लीट डिस्कशन किया मनीष सर ने और आपने, इसके बेसिस में कौन से सेक्टर्स है जिस पे आप एज अ फर्म बुलिश है, आप एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी बुलिश है इन गोइंग फॉरवर्ड? आई वुड से वी आर बुलिश ऑन इंडिया। इंडिया का भाव बढ़ने वाला है। Yeah, every sector will deliver, right? And so traditionally our investing style is a bit different, where we don't participate in the cyclical sectors. हम लोग फोकस ज्यादा करते हैं इन ऑन सेक्टर्स जिसमें सेकुलर ग्रोथ रहती है, राइट? सो योर टिपिकल FMCG, बिल्डिंग मटेरियल्स, बैंकिंग, right? All those where the cycles are always there in every industry, but where the cycles are shorter as compared to other industry like capital goods, industrials, etc. But I would say that we are bullish on the whole country and every sector will participate. Now, over a 10-year period, I think everything will participate. Now, there will be pockets when some sectors will do well, then better than others, and those pockets will keep on changing, right? जैसे अभी हमने देखा last year, pharma was doing better when COVID hit us, right? Of course, and so was the staple side, right? जैसे ऐसे लॉकडाउन खुला, I think discretionary चलना चालू हुआ, right? Banking is yet to perform. करेक्ट। नाउ जैसे जैसे आई थिंक इकोनॉमी और खुलती है, इकोनॉमी तो खुल गई आई थिंक, बट जैसे प्रोग्रेशन होता है, क्रेडिट ग्रोथ अब हमको बढ़ना चालू हुई है। नाउ आई थिंक नेक्स्ट सेक्टर विल बी BFSI, व्हिच विल ओपन अप एंड इन्वेस्टर्स विल गेट इंटरेस्टेड। बट फंडामेंटली आई वुड से 10 years इंडिया में, वन, आई थिंक देयर विल बी मेनी न्यू सेक्टर्स व्हिच विल कम आउट देन हिस्टोरिकली, राइट? नाउ you are combining all the unicorn startups by saying that they are startup sector, but they themselves are so many of them, right? कोई edtech है, कोई fintech है, कोई consumption tech है, right? Tech नाम लगा दिया है, but they are different sectors, right? So new categories will get established, and I would say that making money will be very different from what it was in the past, especially with technologically enabled business, where the growth can be massive, and where if you look at these technology companies, इन सबका बिजनेस मॉडल ऐसा होता है कि एक बार बिजनेस मॉडल सेटअप हो गया, द मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है उसके साथ कोई मार्जिनल कॉस्ट अटैच नहीं होती है। ट्रेडिशनली फॉर एवरी 1 rupee ऑफ रेवेन्यू you have to spend, now somebody spends 80 paisa and somebody spends 20 paisa on the marginal 1 rupee revenue. Now for these tech oriented businesses, वहां पे 1 रुपए एडिशनल रेवेन्यू के लिए आपको 1 पैसा भी कॉस्ट नहीं लगती है, बिकॉज पीपल आर क्लिकिंग बटन्स। वो जे कर्व बहुत स्ट्रांग हो जाता है। So probably after a point you will have to invest in more servers etc, right? But वो I think phase by phase होगा, correct? So sector wise I think we are bullish on the whole country from a 10-year perspective, and definitely I think one big sector, I would say the biggest beneficiary of this whole cycle, if you look at, will be the consumer discretionary side, because as the per capita income increases of the country, जो अभी तकरीबन $2,000 के भी नीचे है, right? तो as it goes to $2,500 or $3,000 in next 10 years or so, right? People will move from staples to consumer discretionary as well. जैसे जैसे पैसा I think आपके पॉकेट में आएगा, आप खाओगे पियोगे उतना ही, right? But discretionary consumption increase होगा। Now discretion में there is a wide variety, whether it's white goods, whether it's vehicles, there are so many things, whether it's entertainment. So discretionary side I think will be the biggest beneficiary of this whole, I think, per capita income movement. Manish, you have any sectors to attach? No, other than what you said, Sushant, there's just one more trend which I foresee. कि while जैसे सुशांत ने कहा कि सब बेनिफिट होंगे, बट अगर आप इसको डिवाइड करते हो लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, देन मुझे लगता है कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स को डिस्प्रपोर्शनेटली ज़्यादा फायदा होगा अगले 10 से 15 सालों में। सिर्फ आपको एज एन इन्वेस्टर करना ये है कि अच्छी कंपनियों को, क्वालिटी कंपनियों को, जिनको बोलते हैं हम गुड एंड क्लीन कंपनियों को थोड़ा अर्ली आइडेंटिफाई करना है, लीडर कंपनियों को, और उनमें लंबे समय तक बने रहना है। और फिर जो रिटर्न CAGR आपका दिखता है वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेटली हाई होता है, और उसके कई एग्जाम्पल्स हमने पहले देखे भी हैं। बिल्डिंग मटेरियल साइड में, कंजम्पशन साइड में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी साइड में, जो कंपनियां निफ्टी छोड़िए, निफ्टी जूनियर छोड़िए, वो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में भी नहीं आती थी,
राइट, वो आज मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट कैप कंपनियां हो गई जिन्होंने 30x 40x 50x रिटर्न दिया है, बट ऑन अ CAGR बेसिस इट स्टिल कम्स आउट टू 20%, 25%, 30% ओनली, राइट। सो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों के हिसाब से अगर आपको इंडिया स्टोरी प्ले करनी है तो फायदा हर जगह है, बट मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में शायद थोड़ा सा ज़्यादा है। इंटरेस्टिंग सर। सेकंड इसमें क्वेश्चन ये आता है कि FIS और DIS का फ्लो हमने लास्ट 10 सालों में बहुत अच्छा देखा है, हमने लास्ट 1.5 ईयर में बहुत अच्छा देखा है, पर लास्ट 1 महीने हमने थोड़ा सा FIS का आउटफ्लो होते हुए देखा है, बट वो परसेंटेज वाइज अभी भी बहुत कम है। गोइंग फॉरवर्ड आपका FIS और DIS के फ्लो के ऊपर क्या आउटलुक है, क्या वो मेंटेन रहेगा तो क्यों रहेगा? सो फ्लो स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लो काफ़ी होमोजीनियस होता है, चाइना, इंडोनेशिया, इंडिया, कोरिया, ताइवान, राइट। या तो पैसा एक साथ आता है या एक साथ जाता है। इमर्जिंग मार्केट का वेट आई थिंक टिपिकली इक्वली बढ़ता है या घटता है। ये पहली बार ऐसा है कि जहाँ पे इंडोनेशिया में फ्लो स्टैग्नेंट है, ताइवान, कोरिया और चाइना में फ्लो कम होते जा रहे हैं, और बल्कि हमने जो इस साल देखा है फ्लोज इन इंडिया, इफ़ यू लीव द मंथ ऑफ नवंबर आउट, एक्चुअली FII फ्लोज हैव बीन एक्सेलरेटिंग इन इंडिया। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि चाइनीज़ इकोनॉमी स्लो डाउन होती जा रही है, राइट। देर इज़ अ रिस्क एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, अगर वो ग्रोथ 4.5% से नीचे जाती है तो, और इन्फ्लेशन जिस तरह पीक आउट कर रहा है, चाइना माइट एक्चुअली एंटर इनटू अ स्टैगफ्लेशन सिचुएशन, जो कि एक बड़ा रियलिस्टिक सा पॉसिबिलिटी अब नज़र आने लग गया, जो पहले 6 महीने पहले शायद अगर मैं आपको कहता तो आप हंस देते मेरे चेहरे पे, राइट। बट अगर ये होता है तो उसका कैस्केडिंग रिपरकशन ये होता है कि साउथ कोरिया, जो कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, वो भी स्लो डाउन हो जाती है। ताइवान शिप शॉर्टेज की वजह से वहाँ पे भी स्लो डाउन हो रहा है, और इंडिया में कोई रेड फ्लैग आपको नज़र नहीं आ रहा है अगले 3 से 5 साल के हिसाब से। जैसे आपने कहा, एग्जीक्यूशन काफ़ी बेहतर हो गया। किसी ने सोचा नहीं था, मुझे लगता है कि साल के स्टार्टिंग में भी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट इस साल एक्चुअली हो जाएगा। ये एक बड़ा पाइप ड्रीम सा लग रहा था, राइट। और वो एक्चुअली में हमने कर दिखाया है, और यहाँ से पेस ऑफ एग्जीक्यूशन डिसइन्वेस्टमेंट में, इंफ्रा में, केपेक्स में बढ़ेगा यहाँ से, और बेहतर होगा। सो उसके हिसाब से अगर आप देखो, और इन्फ्लेशन को, फूड इन्फ्लेशन अगर बैलेंस कर दे, तो अगर आपका WPI और कोर CPI बढ़ता भी रहता है तो CPI की हालत इतनी ख़राब नहीं होगी जितनी कि US की आज हो रही है, या यूरोजोन की हो रही है, या चाइना की जहाँ होती जा रही है। सो उसके हिसाब से आई थिंक इंडिया सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है। आज पैसा सिर्फ इसलिए इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं FIIs, और ये मेरा अनुमान है कि इंडिया हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड इन दिस कैलेंडर ईयर, राइट। आज भी मार्केट पिछले 1 साल के हिसाब से 30, 35, 40% ऊपर है, as compared to the Brazilian index, as compared to the Hang Seng index, as compared to the Shanghai index, right? And उसके बनस्पत अगर आप देखो और आपको साल के एंड में अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, so the best place to book profit from is India. So अभी in a run up to the holiday season, I would expect the flows to remain a little tepid, but come January second week, आप flow वापस उतने ही तेजी से बढ़ते हुए देखोगे, and India will continue to remain a favorite destination of FIIs. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, मैं सुशांत सर आपसे स्पेसिफिकली पूछूंगा। सर, वैल्यूएशंस के ऊपर आपका एज अ फर्म, एज एन एसेट मैनेजमेंट क्या आउटलुक है? बिकॉज वैल्यूएशन के ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गए हैं, वैल्यूएशंस में दिक्कत आ रही है, इसके ऊपर आपका क्या आउटलुक है? देखिए, वैल्यूएशंस इज नॉट अ साइंस, इट्स एन आर्ट, राइट। तो जब लिक्विडिटी इतनी होती है देन वैल्यूएशन इज नहीं होंगे, राइट। नाउ इफ यू आस्क मी, आर द वैल्यूएशंस रीजनेबल? Definitely they are not. Are they cheap? Definitely they are not. But are they expensive? Not necessary, right? Now there will always be some pockets of up and down, right? But broadly, if you look at it, the valuations don't seem to be expensive, especially if you look at the growth rate, right? Nifty, if you look at the PEG ratio, is just about 1.1 times where we are today, right? Whether you from a FY23 perspective, क्योंकि FY22 तो मोर लेस अभी खत्म हो गया है, तो FY23 का आप देखेंगे ग्रोथ रेट, सो द निफ्टी वैल्यूएशंस आर जस्ट अबाउट 1.1 टाइम्स PEG, राइट। तो ग्रोथ है इसलिए वैल्यूएशंस है। नाउ इफ यू लुक अराउंड हिस्टोरिकली लास्ट 10 years, द PEG रेशियो whenever the markets were at big highs, right, had also gone to 1.5 times as well. So अभी I think दिल्ली अभी थोड़ी और दूर है from a becoming a very rich valuation trajectory, right? But that said, last 1 year the corporates have surprised on the positive side.
एक साल पहले जो निफ्टी का एक्सपेक्टेशन था FY23 का EPS का, और आज उसमें काफी फर्क आ गया है, राइट? इट्स अप 30% सिंस देन for FY23 itself, right? Now going forward next 1 year, will the corporates continue to, I would say, deliver what street is expecting, or they miss it? Will be the big question. If they continue to deliver and not even positively surprise, I think markets will continue to be at this trajectory. But if they start disappointing them, right, where the earnings upgrade की जगह downgrade होने लग जाएंगे, then I think will be a challenging situation. अनंत, इसमें एक और पॉइंट है कि अगर आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मार्केट कैप के हिसाब से अगर कंट्रीज को रैंक करो और टॉप 10 मार्केट कैप्स देखो, तो देन आज भी मार्केट कैप टू जीडीपी के हिसाब से विल बी इन द लोएस्ट 3 कंट्रीज, राइट? सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो द मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो जो आज 100 के आसपास है, that actually needs to move up to 130-140% levels, and that is why जो मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में कि हम $5 ट्रिलियन मार्केट कैप पहले पहुंचेंगे और $5 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी साइज हम थोड़ा बाद में पहुंचेंगे उसमें। इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो सर इस कंप्लीट चीज़ों में हमने ये बात तो कर ली कि एफआईआईज अभी थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकते हैं बिकॉज वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो क्या वो निकालना एक मीनिंगफुल करेक्शन होगा? मैं यहाँ पे जर्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं वो 5, 10, 15% वाले शॉर्ट टर्म जर्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे एक अच्छे मीनिंगफुल करेक्शन और अदर आई में रिफ्रेज इट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ। क्या वो मिल सकती है? मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है तो क्यों? सी एक्चुअली अगर आप देखें यहाँ पे आफ्टर ऑल द करेक्शन दैट वी सीन इन द लास्ट 1 मंथ और सो, निफ्टी एक्चुअली 3.5 से 4% करेक्ट हुई है, उससे ज़्यादा निफ्टी करेक्ट नहीं हुई है। बल्कि जो हमने देखा है वो ट्रेंड ये है कि सेक्टर रोटेशन ने काफ़ी पेस पिक किया, राइट? सो मेटल्स, PSU बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इन्होंने थोड़ा सा बैकसीट ले लिया है। People have shifted money from there into sectors like autos, into sectors like media, right, and other cheaper sectors. So there has been a lot of value play which has happened between sectors and then within sectors also, in the way people have moved money away from SBI within the PSU basket, if you talk about, to other PSU banks, right? And I believe that यहाँ से बहुत meaningful correction नहीं आएगा. Am I looking at another 10 to 12% kind of correction on a sustained basis from here? Unlikely. Maybe at best in the next 1 month you might see another 3 to 4% kind of a correction, but an overall correction of 7-8% from the kind of run up that we've had in the last 1.5 years, मैं उसको बहुत meaningful correction नहीं बोलूँगा. So opportunity है, buying opportunity अभी भी है, but just ये करना है कि आपको सतर्क रहना है। आपको जैसे सुशांत ने बोला, वैल्यूएशन को स्टैंडअलोन बेसिस पे नहीं देखना है, आपको वैल्यूएशन को ग्रोथ के साथ मैचअप करके देखना है और अगले 2 से 3 साल की ग्रोथ के बारे में आपको ध्यान रखना है, कॉग्निजेंट रहना है। उसके हिसाब से मुझे लगता है कि काफ़ी सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं और आएंगी। ये आप जो 15-20% वाला करेक्शन के आप वेट कर रहे हैं, राइट, बाइंग अपॉर्चुनिटी, पीपल हैव बीन वेटिंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम सिंस निफ्टी वाज 10,000, राइट? नाउ historically, if you see, whenever such a correction has happened, it has never happened because of factors which have been known already. ये कुछ unexpected आएगा तभी होगा, right? And if something big happens, there is always a chance that such a correction will happen, right? ये कभी known factor से नहीं आएगा कि हमको पता है कि inflation का नंबर इधर से इधर हो जाएगा या ये हो जाएगा। जैसे जैसे ये न्यूज तो क्या है, मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है, right? Even whether it's tapering from Fed or whether it's inflation which has been increasing, right? ये सब चीजें लोगों को ऑलरेडी डाइजेस्ट है, so उसकी वजह से माइनर ब्लिप्स ही होंगे। Something large, the 10, 15, 20% correction will always happen because of something unexpected. Now that's something which nobody knows right now, right? People claim that markets will go down because of their experience on the charts, etc. I think nobody knows it, right? There is no point claiming that we know it because कुछ unexpected होगा तभी ऐसा होगा. Now if something like this happens, unexpected happens, then I would say that it will be a good time to get in. But what we have seen historically, human mind जो है, जैसे कुछ unexpected होगा, fearful activity आएगी, हम लोग या तो greedy हो जाएंगे कि थोड़ा और गिरेगा, और या फिर हम बोलेंगे कि नहीं अब दुनिया खत्म हो गई है। जब कोविड भी आया था, brilliant opportunity, right? But how many people bought? सर 2 वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो भी आपने बोले। सबसे पहले जब एक्चुअली अपॉर्चुनिटी आती है, हम भाग लेने की जगह हम भाग जाते हैं वहां से।
साथ साथ जो टेपरिंग का जो हमें हिस्ट्री का डेटा बताता है ना, वो भी ऐसा ही कुछ बताता है। 2004 से लेके 2008 में ऑलमोस्ट 5.12% से लेते लेते इंटरेस्ट रेट 9.33% तक गई थी। बट दैट इज गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट, हमारे 23% के ऊपर का CAGR रिटर्न्स था। सेम ऑलमोस्ट हैपेंड फ्रॉम 2008 to 11 वाला पीरियड। हर एक स्लोडाउन के बाद हमने हमेशा हिस्ट्री में देखा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, बट वो प्रोसेस इतना स्लो होता है कि मार्केट उसको डाइजेस्ट कर लेता है धीरे धीरे, एंड इट इज फैक्टर्ड इन, जो आपने बोली चीज। और सर फिर इसमें एक और चीज, थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, मैं आप दोनों से ये एड्रेस चाहूंगा। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है, साथ ही साथ लोगों ने एक्चुअली बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस रैली में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि सब ये समझ रहे थे कि थोड़ा और अपॉर्चुनिटी मिल जाए या अब बहुत बढ़ गया। उसके कारण अब हो क्या रहा है सर, जैसे 2% टूटता है या 3% या 5% भी मार्केट में जर्क आता है, हमें इतने सारे टाइटल्स मिल जाते हैं सोशल मीडिया पे कि मार्केट क्रैश हो गया है, मार्केट का टॉप बन चुका है। इसके ऊपर आपका क्या टेक है कि क्या मार्केट का टॉप इतनी आसानी से बन जाता है कि 12,000 पे भी बना था, 14,000 पे भी बना था, 16,000 पे भी बना था, अब 18,500 पे हर कोई बोल रहा है कि बस अब मार्केट का टॉप बन गया है? क्या ऐसे काम करता है, कैसे होता है ये एक्चुअली? सो आनंद जी, इंडेक्स जिसको हम मार्केट बोलते हैं नेवर टॉप्स, बिकॉज इंडेक्स में अगर आप देखेंगे इंडेक्स बनता कैसे है, इंडेक्स इज मेड अप ऑफ कंपनीज विच आर सक्सेसफुल। जो कंपनी सक्सेसफुल होती है और कंटिन्यूसली सक्सेसफुल रहती है वो इंडेक्स का पार्ट रहती है। जो कंपनी अनसक्सेसफुल हो जाती है या जिसकी ग्रोथ या उससे ज्यादा सक्सेसफुल कैंडिडेट आए थे वो इंडेक्स का पार्ट बन जाते हैं। इंडेक्स तो टॉप 50, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी विल ओनली बी टॉप 50 कंपनीज, सेंसेक्स विल ओनली बी टॉप 30 कंपनीज, करेक्ट। तो ये एक सर्वाइवल बायस होता है, करेक्ट। तो अगर अच्छी कंपनी आती रहेगी और उनकी ग्रोथ बढ़ती रहेगी, उनका प्राइस बढ़ता रहेगा। आप कोई भी चार्ट ले लीजिए 10 साल का, 20 साल का, द प्राइस मूवमेंट विल फॉलो द EPS मूवमेंट, राइट। सो निफ्टी में या सेंसेक्स में तो अच्छी कंपनी आती रहेगी, इसलिए निफ्टी का EPS और सेंसेक्स का EPS तो बढ़ता ही रहेगा। तो जब बढ़ता ही रहेगा तो भाव भी बढ़ता ही रहेगा, तो टॉप कभी होता नहीं है, राइट। नाउ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से फॉर अ 6 months और 1 year पीरियड, यू कैन से कि ये टॉप है, right? But if you take long term view, things never top out because companies will continue to grow, और जो ग्रो नहीं करे उनकी जगह कोई दूसरी आ जाएगी। वेरी मतलब इंडिया स्पेशली कंट्रीज, अब जैसे अभी सऊदी अरेबिया जैसा मार्केट है जहां पे एक कंपनी इटसेल्फ इज मार्केट, करेक्ट, जो भी अरामको लिस्ट हुई थी वहां पे, राइट। तो वो डेट इटसेल्फ क्रिएट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ द मार्केट। सो वो अरामको के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका इंडेक्स कहां जाता है, करेक्ट। बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया, even the topmost name don't have more than 10-12% weight, है ना। तो वो अगर वो कंपनी नहीं कर रही बाकी सब अच्छा कर रही है तो मार्केट भी बढ़ता ही रहेगा, करेक्ट। देयर इज नो वन सेक्टर, देयर इज नो वन कंपनी which, because we are not a resource based country. अब जैसे countries like Brazil, Russia, right, they all are countries which have one specific sector which is very large, correct, so energy related। तो वहां पे फिर भी बिकॉज वो सेक्टर और सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट वाला है, राइट, तो यहाँ पे सब एनर्जी ओरिएंटेड कंपनीज हैं, यहाँ पे नॉर्वे है, तो वहां पे दैट सेक्टर और वन कंपनीज ऑफ विद इन देम इज द होल मार्केट एनी विच वेज। तो वहां पे ये सब सिचुएशन, इन अ कंट्री लाइक इंडिया ये सब सिचुएशन आती नहीं है। एक आपको क्वेश्चन पूछता हूं मैं, 2017 में 2018 जनवरी में मार्केट टॉप हुआ था एक बार, 2021 में मार्केट वहां पे है, राइट। आप मेरे को बताइए 2017 दिसंबर, लेट्स टेक अ नॉर्मल टाइमलाइन, राइट, और 2021 नवंबर में, राइट, अगर हम टॉप 1000 कंपनीज पिक करते हैं एज ऑफ दिसंबर 2017, right, and we look at what has happened to them in November 2021, which is 4 long years almost, right, just 1 month, 1.5 months short of it. How many companies are at those price levels? 50% companies are yet to see those prices, 50%। तो 1000 में से 500 कंपनियां अभी भी वो प्राइस लेवल नहीं देखा है अभी तक 2017 का, and it includes large cap, mid cap, small cap and micro cap, all sort of companies। तो ये सब जो नॉइस होती है ना मार्केट की, उसमें हमको पता नहीं लगता है, हमको लगता है कि अभी मार्केट इतना चल गया है तो सभी चल गए होंगे, राइट। आप अगर कोविड वाला पीरियड देखेंगे, लेट्स से दिसंबर 2019, which was just before COVID, right, because we can't say which date was COVID, let's not take the lowest point of market which was 23rd March 2020, right, but दिसंबर 19 से देखेंगे आप तो almost everybody has recovered from that level, but दिसंबर 2017 वाला लेवल अभी भी 50% companies are yet to recover to that point, and they are big names,
in that. There are large cap companies, there are mid cap companies, there are small cap companies, there are many micro cap companies. So ये लोग हम realize नहीं करते हैं. So when people want to make money from market, if you are investing in the index, it's okay to look at the index. But if you are investing in stocks, you have to look at where the company is in which we have invested. तो ये एक myth होता है कि market top हो गया है. I think once when somebody is investing in equity markets, unless you are investing only in equity index funds, what you should be bothered about is कि मैं जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं उन कंपनी का क्या हुआ है. सो अगर 100 में से 50 कंपनियां, 1000 में से 500 कंपनियां अभी भी 2-4 साल पुराने वाले लेवल पे नहीं आई है, तो सोचिए कितना पैसा लोगों ने खोया है उधर, या वेल्थ नहीं बढ़ी. बिकॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कोई चीज होती है, राइट, कंपेयर टू. और इस रैली में यही हुआ है. बिटवीन अप्रैल 2020 till about, I think for about April, May, June 2021, very few people participated. There were only new people who came. Old people didn't participate at all because they believed that market is expensive. अब 18,000 जब निफ्टी हुआ है, then people are saying कि now we cannot further miss it, which I would say again is a right thought, because आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हर जना ये सोच के आता है ना मैं 3 साल 5 साल करूंगा. जो डे ट्रेडर है जिनका ये काम ही है इनकम निकालना मार्केट से, वो तो शुरू से इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है मार्केट कहाँ जा रहा है, राइट. बट फॉर पीपल हु वांट टू यूज इक्विटी टू क्रिएट देयर वेल्थ, राइट, फॉर देम एट इवन 18,000 निफ्टी आई वुड से नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. शायद 1 साल पैसा नहीं बनेगा, 2 साल पैसा नहीं बनेगा, बट 5 साल में 10 साल में जो नेक्स्ट 8 ईयर से 10 साल में से उसमें बहुत पैसा बन जाएगा अगर आप इक्विटी में रहे तो. की इज कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप. या तो आप सिंपल प्लेन इंडेक्स फंड में डाल दीजिए पैसा, तो अपना आपका जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट वो 10-12% है इक्विटी का इन इंडिया, rather than taking the point to point of the lowest to highest or highest to lowest where you can get upset numbers. But 10-12% equity index has delivered in last 20 years on an average basis, right? तो वो तो आपको मिल जाएगा. बट अगर आपको है कि मेरे को तो इससे ज्यादा कमाना है, then you have to invest in stocks. Now whether it's a portfolio of stocks, whether individual stocks or a mutual fund, वहां पे सब जगह आपको ये देखना है कि मैं कौन सी टाइप की कंपनीज में अल्टीमेटली मेरा एक्सपोजर है. और वो एक्सपोजर अगर कंपनीज विच आर नॉट ग्रोइंग, if you have invested in them, right, or where there are corporate governance issues, because price movement is not just about earning in the short term, but also about how the companies are run, how the corporate governance standards are there, whether the sector has good growth for the future or not. ये काफी चीजें हैं, सिंपल थिंग्स है, बट अगर आप अप्लाई करेंगे तो अच्छा पैसा बन सकता है इक्विटी में, where people can, I would say, easily make 15% plus returns, right? People get greedy, people want 15% return in a month. And which is where the problem starts, right? Absolutely. होता क्या है कि हम सब लोग इक्विटी को इनकम बना लेते हैं rather than wealth creation, right? जिसने ट्रेजर बनाने के लिए किया है इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, वो हमेशा जीतता है. और जो पीएनएल में चला जाता है, सो बैलेंस शीट से अगर पीएनएल में चले गए इक्विटी के लिए आप, तो आप हमेशा मोस्ट ऑफ द पीपल लूज. एंड दिस इज व्हाट मार्केट इज, राइट? There are set of winners and there are set of losers. अमेजिंग डिस्कशन एंड अमेजिंग कंक्लूजन सर जो आपने दिया है. फाइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू बोथ कि आप आए, आपने इतना सारा डिस्कशन किया, इतने सारे पॉइंट्स को बहुत सिंप्लीफाई करके हम सभी के सामने प्रेजेंट किया. सो थैंक यू सो मच सुशांत सर, थैंक यू सो मच मनीष सर फॉर कंप्लीट डिस्कशन एंड फॉर कंप्लीट इंसाइटफुल टॉक जो आपने दी. थैंक यू सो मच सर. Thank you for having us. Thank you Anand, thanks so much for having us here.